So hello students, আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি obviously ক্লাছ নম্বৰ 1 দিয়া হৈছে, বাট আপোনালোকৰ মাজত বহুতে চাগে অলৰেডি দুটা ক্লাছ হৈছিল না বিনা পঢ়াতে অলৰেডি আপোনালোকে বহুতে চাগে দুটা ক্লাছ মোৰ ফালৰ পৰা পাইছিল ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ। আৰু যদি অলপ মই বস্তুখিনি কৈ দিওঁ তাতে কি ডিছকাশ্যন কৰা হৈছিল, বেচিকেলি তাতে একেবাৰে বেছিক বস্তুখিনি পলিটি কাক কোৱা হয়, কনষ্টিটিউশ্যন কি হয়, হয়নে, ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন কেতিয়া বনোৱা হৈছিল, কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল। বাট আকৌ মই চিৰিজটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণ হ'ল বিকজ মই তাতে দুটা ক্লাছ দি বন্ধ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ এতিয়া আপুনি একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা পাব আৰু একদম ফ্ৰম দ্য ভেৰি বিগিনিং, ঠিক আছে। কাৰণ হ'ল যেতিয়া ইণ্ডিয়ান পলিটি লাষ্ট টাইম যেতিয়া কৰা হৈছিল আফটাৰ টেকিং টু ক্লাছেছ মোৰ যিটো ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল তাতে বহুত বেছি মানে বস্তুখিনি অলপ ইলাবৰেট কৰা আছিল, মানে বহুত বেছি ডেছক্ৰিপটিভ দিয়া হৈছিল, বহুত বেছি ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈছিল। অবভিয়াছলি দেট ৱাৰ নেচেচাৰী, বাট যদি মোৰ টাৰ্গেট এক্সাম যদি এডিআৰই হয়, টাৰ্গেট এক্সাম যদি এছএছচি হয় বা আৰআৰবি হয়, দেন ইমান চাগে প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি তাতে নোট মোৰ যিটো মই যেনেকৈ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী চাগে মোৰ 13টা কি 14টা ক্লাছ হৈছে। তাতে বস্তুখিনি কেনেকৈ মই বুজাইছোঁ যে বস্তুখিনি লিখি বুজাইছোঁ হা, ষ্টৰীৰ নিচিনা। আৰু চ' মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ সময়ত বস্তুখিনি এই মানে প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰা अकॉर्डिंग टू मी बेटर, बिकॉज তেতিয়া एक स्टोरी जैसा चीज को मैं समझा सकता हूँ कि ये हुआ इसके बाद ये हुआ। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी और इंडियन जिओग्राफी তাতে যদি মই এনে জাস্ট বস্তুখিনি লিখি যদি বুজাওঁ, যদি তাতে ইমান ইনফৰমেশ্যন থাকে তেতিয়া আধা ঘণ্টাৰ বস্তু বুজাওঁতে চাগে মই 1.5 ঘণ্টা লাগিব। আৰু চ' বেটাৰ মই যদি কণ্টেণ্টখিনি ইয়াতে যদি ৰেডি ৰাখোঁ তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ব আৰু নোট বনোৱাটো অলপ সুবিধা হ'ব। দ্যাটছ দ্য অনলি ৰিজন। এইকাৰণে মই বস্তুখিনি আকৌ নতুনকৈ পিপিটি বনাইছোঁ, নতুনকৈ আকৌ কণ্টেণ্ট বনাইছোঁ, আৰু বস্তুখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি ৰেডিমেড পাব। আৰু চ' আপোনালোকক ক্লাছ কৰাৰ সময়তে এইটো বাৰু অকল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ কাৰণে নহয়, বিকজ আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এইকাৰণে নহয়, ইণ্ডিয়ান পলিটি যেতিয়া আমাৰ কমপ্লিট চিৰিজ চলিব অনলাইন এণ্ড অফলাইন, মই দুজনৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া মই বুজাম বাৰু আপোনালোকে লগে লগে এইটো নোট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, बिकॉज अगर आप नोट करने जाएंगे तो आप नोट कर ही नहीं पाएंगे। एक स्लाइड में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं उसको समझा के नेक्स्ट स्लाइड में चला जाऊंगा और आपका शायद पहला स्लाइड का शायद 25% नोट भी रेडी नहीं होगा। सो बेटर आप फोकस कीजिए मैं की क्या समझा रहा हूँ उसमें, ठीक है। मैं की बुझाई आसो বা এক্সট্ৰা কিবা যদি কৈ আছো এইটো মই কি নোট ডাউন কৰিলোঁ আফটাৰ দ্য ক্লাছ। অবভিয়াছলি যে কমপ্লিট যিটো মই আপুনি এতিয়া PDF চাই আছে বা PPT চাই আছে এইটো ইন দ্য ফৰ্ম অফ PDF আপোনালোকক দিয়া হ'ব। 3টা-4টা ক্লাছ কৰাৰ পিছত একেবাৰে 3টা-4টা ক্লাছৰ যিটো কণ্টেণ্ট একেলগে আপোনাক ইন দ্য ফৰ্ম অফ PDF আপনাलोगों को दिया होगा। बट इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ मैं लिखूंगा होगा ना कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में हो सकता है कि इस PPT में ये वाला चीज़ नहीं है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। तो उसमें दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और ऑफलाइन स्टूडेंट क्या करेंगे, पूरा क्लास खत्म होने के बाद आप उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई तो जैसे करेंगे आपको स्क्रीनशॉट लेंगे ही, उसका PDF बना के दे देंगे, तो PDF में भी वो सब चीज़ आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप घर में जाके अब इसको आराम से तसल्ली से नोट बनाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें और एक बात भी मैं बोल दूँ, ऑब्वियसली मोर निजर फाলৰ পৰা যিমানখিনি মোৰ যিটো মানে কি ক'ম বাৰু एक्सपीरियंस को पारे বা मोर जिमानखिनि लागे और जा मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ये आपका सफिशिएंट है। लेकिन ये भी बोलना शायद बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक ये बात हो जाएगा कि मैं जो दूंगा उसमें से ही आएगा, ये तो गलत बात हो जाएगा, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, मेरा कंटेंट में शायद 99% চান্স होगा कि मैं যিমানখিনি বুজাম তাৰ পৰা আহিব, বাট 1% 2% অবভিয়াছলি এটা চান্স থাকে যে বিকজ বাহিৰৰ পৰা আহিবই পাৰে। আৰু বিকজ উই আৰ নট টাৰ্গেটিং ফৰ UPSC or APSC, তাতে আৰু বহুত ডেছক্ৰিপটিভ বস্তু লাগে। আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে বাৰু নৱৰুণ ছাৰৰ ক্লাছ কৰিছে তেখেতসকলে অলৰেডি ইণ্ডিয়ান পলিটি চাগে একবাৰ শেষ হৈছে। আৰু তোমাৰ হৈছে কি আগে একবাৰ হৈছে না একবাৰ হৈছে, তোমাদের হৈছে মৌচুমী হৈছে হয়নি। চ' নৱৰুণ ছাৰে যেতিয়া ক্লাছ কৰিছে যেতিয়া লাষ্ট ADRE এক্সাম হ'ল, মই জাষ্ট আপোনাক বস্তুখিনি অলপ কণ্টেক্সটো বুজাবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ। চ' নৱৰুণ ছাৰে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ক্লাছ লৈছিল আপোনাৰ চাগে ইফ আই এম নট ৰং 12টা ক্লাছ লৈছিল, 12 ক্লাছেছ অনলি, এটা ক্লাছ 2 ঘণ্টাকে মানে 24 ঘণ্টা। তেখেতে যিটো মোৰ নোট দেখাইছে, ছাৰে যিটো নোট শ্বেয়াৰ কৰিছে ষ্টুডেণ্টৰ লগত, এইটো চাগে ছাৰৰ নোটৰ কম্পেৰিজনত মোৰ যিটো কণ্টেণ্ট চাগে 5 to 6 টাইমছ হ'ব ইন টাৰ্মছ অফ ভলিউম। মানে মই আৰু বেছি এইকেইটা কণ্টেণ্টটো থাকিবই বাৰু, বাট ইয়াৰ বাহিৰত আৰু বহুত বেছি কণ্টেণ্ট থাকিব। বাট ডেট ডাজন্ট মিন যে ছাৰৰ নোট মানে ছাৰৰ যদি আপুনি নোটটো চাই, যদি লাষ্ট ADRE এক্সাম হ'ল, আছাম পুলিচ এক্সাম হ'ল যোৱা বছৰৰ, ছাৰৰ নোটৰ পৰা 100% কমন আছিল। এইটো বাৰু মই কোৱা কথা নহয়, যিসকলে এক্সাম দিয়ে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ গম পায়। सो वो पर्टिकुलर 12 क्लास में सब आ गया था। अभी हो सकता है कि मैं इधर में करूंगा 20 क्लास, इसमें से शायद कॉमन आ भी सकता है, क्या पता किसी एक एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है। सो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये हर एक सिंसियर एस्पिरेंट का ये ड्यूटी होता है कि मैं जो क्लास करी मैं तो अपने निश्चय के नोट बनाबो, बट वाइल मेकिंग नोट्स আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এবাৰ গুগল সাৰ্চ কৰক। যে সাপোজ মই এটা কিবা ক'লো যে সাপোজ ভীমৰাও আম্বেদকৰলৈ কিবা মই এটা কমেণ্ট কৰিলোঁ, ভীমৰাও আম্বেদকৰ ৰিলেটেড সাম কিবা ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চ' আপুনি যদি অলপ গুগলত যায় যে ভীমৰাও আম্বেদকৰ
এই বস্তুটো কৰিছিল নেকি, লগতে মেবি আপুনি দুটা ইনফৰমেশ্যন এডেড ইনফৰমেশ্যন পাব। চ' যদি পচিবল এইটো নোট ডাউন কৰি ল'ব আৰু। চ' ইট ইজ অলৱেজ এডভাইজেবল কি আপোনালোকে নিজৰ নোট নিজে বনাব। মোৰ পিডিএফৰ পৰা যদি আপুনি অকল মানে জাষ্ট গো থ্ৰু কৰে, চ' আপুনি এইটো ভাবক মোৰ ক্লাছটো বাৰু অফলাইন ষ্টুডেণ্ট আজি বাৰু চাই আছে বাৰু মোটামুটি 40 জন, ইয়াতে মানে অনলাইন আছে 40 জন, অফলাইন মোটামুটি 10 জন 12 জন আছে। চ' মই চাপোজ এটা চেম্পল স্পেচ লৈছোঁ, 50 জনে মোৰ ছেম ক্লাছ কৰিব। চ' 50 জনে চাকৰি নাপায়, এইটো আপুনিও জানো ময়ো জানো, 50 জনে চাকৰি নাপায়। ইয়াৰ পৰা চাগে 5 জনে চাকৰি পাব। এই 5 জন নিশ্চয় কিবা ইউনিকটো কৰিব, এইকাৰণে 5 জনে চাকৰি পাব, হয় নে নাই? তো বাকী 45 যদি নৰ্মেল ৰিডিং কৰে, যদি নৰ্মেল যদি গো থ্ৰু কৰে, সে কিন্তু মানে 100% বস্তুখিনি কমপ্লিট নহয় কিন্তু, ঠিক है। सो जैसे मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब मैं क्लास करूंगा पूरा समझने में फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा जो चीजें लिखता जाऊंगा, बाद में इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा स्लाइड वाइज, उसके बाद अपने से घर में तसल्ली से नोट बनाएंगे सब कोई, ठीक है। विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। इंडियन पॉलिटी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पॉलिटी, बाट এটা আইৰনি, এইটো আইৰনি বুলি ক'ব পাৰে যে সাবজেক্টৰ নাম হ'ল ইণ্ডিয়ান পলিটি, বাট মোৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকেই হ'ল কনষ্টিটিউশ্যন। এইটো বাৰু এনেকৈ নহয় যে বাৰু মই কনষ্টিটিউশ্যন দি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপুনি বাৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলত চাব বা বেলেগ যিকোনো কিতাপ চাব, আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পুৰা ছাবজেক্টটো ষ্টাৰ্টে হয় এই ৱাৰ্ড দি, কনষ্টিটিউশ্যন। চ' এইটো দেখা যাব বাৰু, অবভিয়াছলি দিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। যেতিয়া আপোনাৰ 20টা 22টা 25টা ক্লাছ হ'ব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গম পাব যে মোৰ গোটেইখিনি ডিছকাশ্যন কনষ্টিটিউশ্যন লৈ হ'ব বাৰু। যে कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बोला गया है, ये हम लोग अपने से सब बात होगा कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में। तो এটা बहुत স্বাভাৱিক এটা কোশ্চেন, স্যার এই সাবজেক্ট का नाम, এই সাবজেক্টৰ নাম ইণ্ডিয়ান পলিটি ৰাখা কি প্ৰয়োজন আছিল? সাবজেক্টৰ নাম ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৰাখিব পাৰিলে, ইণ্ডিয়ান পলিটি ৰাখা কি প্ৰয়োজন আছিল, হয়নে নাই? চ' অবভিয়াছলি ইণ্ডিয়ান পলিটিত আমি যিমান বস্তু ডিছকাছ কৰিম, 90 to 95% অফ দ্য টপিক উইল বি ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু কনষ্টিটিউশ্যন। কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়তে আমাৰ 95% ষ্টাডি হ'ব, বাকী 5% থাকিব যিটো যেনেকৈ প্লেনিং কমিশ্যন হৈ গ'ল, NHRC হৈ গ'ল, হয়নে? এইকেইটা বস্তু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ বাহিৰত থকা বস্তু, এইটো কনষ্টিটিউশ্যন নাই। আমাৰ যে প্লেনিং কমিশ্যন বুলি এটা বস্তু হয়, নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ গম পায়, প্লেনিং কৰে আৰু তেখেতসকলে 5 বছৰ মূৰে মূৰে, যি হওক এইকেইটা বস্তু নন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ, এইবিলাক কোৱা হয় নন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ। কনষ্টিটিউশ্যন এইকেইটা বস্তু নাই, চ' এইটো ছেপাৰেটকৈ ষ্টাডি কৰা হ'ব। বাট মোষ্টলি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ 95 to 90% चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी होता क्या है? पहला क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री, इतिहास होता है पास्ट के बारे में जानना, और पास्ट को जानते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर को उस हिसाब से सुधारना, यही तो होता है हिस्ट्री का बात। जियोग्राफी, जियोग्राफी भूगोल है ना, आमार इंडिया बा आमार অসমত কি আছে, ক'ত আছে কি নাই, আমি সাগে বহুত বস্তু গমে নাপাওঁ আৰু। সো আমি জিওগ্রাফি এইবিলাক বস্তু আমাক হেল্প কৰে জানাৰ কাৰণে। পলিটি কি হয়? হোয়াট ইজ পলিটি? क्या होता है पॉलिटी? खाने का चीज, देखने का चीज, व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी माने किंतु पॉलिटिक्स নহয়, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज এই क्वेश्चन आंसर बहुते दिए, बस अगर आप लोगों ने आंसर दिया नहीं होते पॉलिटी माने तो पॉलिटिक्स ना, पॉलिटिक्स राजनीति वो अलग बात हो गया। पॉलिटी माने अ सेट ऑफ रूल्स जिटू दी एटा कंट्री चलोৱা হ'ব। एक देश कैसा चलेगा, कैसा रूल में चलेगा, उस रूल के आधार में उस देश को चलना पड़ेगा, और देश में जो लोग रह रहा है, मतलब जितना भी सिटीजन्स है, उसी रूल को मानते हुए चलना पड़ेगा। वो जो सेट ऑफ रूल्स होगा, जिसको मानना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। मेरा बस चले तो मैं मानूंगा, मेरा बस नहीं चले तो मैं नहीं मानूंगा, एटो बारो নহয়। सो पॉलिटी माने अ पर्टिकुलर गवर्निंग सेट ऑफ रूल्स जिटू दी आमार আমি আমাৰ বাকি ডে টু ডে লাইফ এক্টিভিটিজ কেইটা আমি এনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, আমাক চলাব লাগে, আৰু ইয়াৰ বাহিৰত আমি যাব নোৱাৰো, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान बोली कोआ है। कॉन्स्टिट्यूशन मैं जो आपको अभी पॉलिटी का डेफिनेशन दिया, मैं पॉलिटी डेफिनेशन आप लोगों को की दिलू, अ सेट ऑफ गवर्निंग रूल्स बाय व्हिच अ स्टेट मस्ट रन। এটা স্টেট বা এটা কান্ট্রি চলাৰ বাবে যেটো বাৰু সেট অফ রুলস সবকে ফলো কৰা প্ৰয়োজন, দ্যাট ইজ পলিটি। আৰু এই যে সেট অফ রুলসৰ কথা মই কৈ আছো বাৰে বাৰে, এই সেট অফ রুলস আপুনি ক'ত পাব? এই সেটটো পাব আপুনি কনষ্টিটিউশনত। সো কনষ্টিটিউশন এটা বহুত ডাঙৰ এটা কিতাপ হয়, এইটো এদিন বা দুদিনত বনোৱা বস্তু নহয়, মোটামুটি আমি চাম বাৰু পিছত। মোটামুটি 3 বছৰ লাগিছিল আমাৰ কনষ্টিটিউশন বনোৱাৰ বাবে। যে কনষ্টিটিউশন এটা বহুত ডাঙৰ কিতাপ হয়। এই কনষ্টিটিউশন আমাৰ গোটেই কেইটা রুলস, যে রুলস কেইটা আমাৰ ফলো কৰা প্ৰয়োজন, আমাৰ ফলো কৰা আমাৰ ওপৰত ম্যান্ডেটৰি, অপশনাল নহয়, এই সেট অফ রুলস আপুনি ক'ত পাব? কনষ্টিটিউশনত পাব। এই হ'ল আপোনাৰ কনষ্টিটিউশন। এই কনষ্টিটিউশনৰ কিতাপ যেটো আছে বাৰু, আপনি যদি এটা জাস্ট আইডিয়া দিয়াৰ কাৰণে মই কৈ আছো, এই কিতাপৰ ওয়েট আপোনাৰ মোটামুটি 10 কেজি। এই কিতাপৰ ওয়েট যদি আপুনি বিচাৰে, মোটামুটি ওয়েট কিমান হ'ব বাৰু? वेट मोटा मोटी अपना 10 केजी। तो सोचिए 10 केजी वाला एक किताब, उसमें कितना कुछ होगा।
ठीक है। सो दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस অফ দ্য কাইণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি। আমাৰ কাণ্ট্ৰি, আমাৰ দেশ কেনেকৈ চলিব, আমি কেনেকৈ চলাম, আমাৰ কাৰণে কোনটো ভাল, এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত লিখা আছে, এই কনষ্টিটিউশ্যন লিখা আছে। ইট লেজ আউট চাৰ্টেন আইডিয়েলছ, ঠিক আছে, দেট ফৰ্ম দ্য বেচিছ অফ দ্য কাইণ্ড অফ কাণ্ট্ৰি। বিকজ আপুনি যদি অলপ ভালকৈ চায়, আমাৰ ইণ্ডিয়া লগত আপনি यूएस को कंपेयर কৰিব নোৱাৰে। मैं अच्छा बुरा का बात नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा देश महान है और यूएस से बहुत खराब है, वो तो दूसरा बात हो गया, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ इंडिया चलने का, इंडिया को चलाने का एक तरीका और यूएस को चलाने का तरीका में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे नॉर्थ कोरिया का, जहां पे डिक्टेटर है वो, जो आपका किम जोंग जो है, वो तो जैसे है, मतलब अपने कुछ भी कर सकता है, वो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया চলাৰ বাবে এটা ডেফিনিট সেট অফ ৰুলছ আছে, ইউএছ চলাৰ বাবে ডেফিনিট সেট অফ ৰুলছ আছে। সিমিলাৰলি ইণ্ডিয়া চলাৰ কাৰণে ডেফিনিট সেট অফ ৰুলছ আছে, এটা ডেফিনিট সেট অফ আইডিঅলজি আছে, প্ৰিন্সিপলছ আছে, আইডিয়েলছ আছে, যিবিলাক আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন কৰা আছে। ক্লিয়াৰ? ओके। এতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এইটো এটা কোশ্চেন আহে, এইটো ডাইৰেক্ট কোশ্চেন, হা, ये आपके एग्जाम में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज চাৰিটা অপশন দিয়া আছে। পাৰ্টলি ৰিজিড অপশন এ, ऑप्शन बी पार्टली फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी बोथ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, और ऑप्शन डी नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। এই চাৰিটা অপশন কোশ্চেনত আহে, আৰু বহুত কমন কোশ্চেন হয়, ঠিক আছে। সো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনক পার্টলি রিজিড বুলি কোৱা হয়, পার্টলি फ्लेक्सिबल বুলি কোৱা হয়। তো মানে কি, ঠিক আছে, आंसर হ'ব বাৰু পার্টলি রিজিড, পার্টলি फ्लेक्सिबल। अब इसका मतलब क्या हुआ? রিজিড মানে যেটো বড় একদম স্ট্রিক্ট, আৰু যেটো কোনো তাতে কোনো চেঞ্জেস আনাটো সম্ভৱ নহয়। सपोज এটা পাথর, এটা একটা रिजिड बॉडी, बिकॉज मैं इसको जितना भी प्रेशर दूं ये उसका शेप चेंज, आकार इसका चेंज नहीं होगा। पत्थर एक रिजिड बॉडी है। वेयर एज मैं अगर एक गुब्बारा ले लूं, एक बेलून ले लूं, और बेलून को मैं अगर प्रेस करूंगा उसका शेप चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन माई प्रेशर, ऑन माई फोर्स। मैं जिमान फोर्स दी मैं शेप चेंज होबो। सो बेलून इज अ फ्लेक्सिबल बॉडी, वेयर पत्थर स्टोन এটা रिजिड बॉडी। सो আমার কনস্টিটিউশন রিজিডও হয়, ফ্লেক্সিবল হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। যেনেকে আমার কনস্টিটিউशन যেতিয়া বনোৱা হৈছিল, বস্তুখিনি অলপ বুজাৰ ট্ৰাই কৰা প্ৰয়োজন, बिकॉज मैं कुछ बातें जब पॉलिटी डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ बातें मैं बोलूंगा, वो भी इंटेंशनली, जो शायद कॉन्ट्रोवर्शियल साउंड कर सकता है, बट बीइंग रैशनल, आपको थोड़ा लॉजिकली चीज को थोड़ा समझना है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। আমার মাজত যেনেকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এজন আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীৰ। সো মই যদি আপোনালোকৰ নিচিনা মই যেতিয়া কিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম যেতিয়া দিবলৈ যাওঁ, বা মোৰ ভাই যেতিয়া এক্সাম কেইটা ক্ৰেক কৰিলে, তেখেতৰ বাকীৰ নিচিনা বহুত এইটো কমপ্লেইন থাকে আৰু, যে ইমান রিজার্ভেশন দিয়া আছে এসসির কারণে, এসটির কারণে, ওবিসির কারণে, আমার জেনারেলের কারণে কোনো রিজার্ভেশন নাই, আমার তো তার উপর আমার অসম সরকার ওমেনের কারণে সেপারেটকে रिजर्वेशन দিব। सो जनरल मेल, सोचिए अनरिजर्व कैटेगरी मेल का क्या हास्यर होगा, उनका तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रैशनल बात है, कौन क्या है वो तो अलग बात हो गया, जो मैं नॉर्मली जो बाहर से जो दिखता है जो এতিয়া কথা হল। আর এইটো এই যেতিয়া সিচুয়েশন যেতিয়া আহে, তেতিয়া সবে কি করব, নোয়িং নাথিং इसका सब कल्प्रिट है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर रिजर्वेशन যদি নকৰিলেহেঁতেন আজি আমাৰ এই সিচুয়েশন নহয়। গলত, একদম গলত। যেই সময়ত আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বনোৱা হৈছিল, এই সময়ত ইন্ডিয়ান সিচুয়েশনৰ কথা ভাবক। इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंस पाले, पूरा कंप्लीट देश में हंगर, मतलब खाने का नाम पे कुछ नहीं है, गरीबी पूरा भरपूर मात्रा में गरीबी है, गिने चुने लोगों के पास भरपूर मात्रा में खाना है, बाकी सब लोग एक टाइम खाता है तो 3 दिन खाना नहीं मिलता है। उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, देश जस्ट इंडिपेंडेंस मिला था, बाकी देशों के ऊपर डिपेंडेंट था, किसी के ऊपर खाने के ऊपर, किसी के ऊपर दूसरा किसी कमोडिटी के ऊपर। उस टाइम এই পার্টিকুলার সময় যেতিয়া কনস্টিটিউশন বনোৱা হল, এই সময়ৰ লগত আজি সময়ৰ মাজত বহুত ডিফারেন্স আছে, ইন টার্মস অফ ডেভেলপমেন্ট, ইন টার্মস অফ ইকোনমি, বহুত ডিফারেন্স আছে। সো এই সময়ত এটা আজিৰ দিনতে চলি আছে বাৰু, আমাৰ ইণ্ডিয়াত আজিৰ দিনত এনেকৈ বাৰু বহুত কেইটা ষ্টেট আছে, যি ষ্টেটত আপুনি যদি চাই, যদি দলিত সমাজৰ যিসকল মানুহ, তেখেতসকলক বাৰু আনটাচেবল, তেখেতসকলৰ লগত পুৰা একদম ডিस्क्रिमिनेट কৰা হয়। এই লোক তো बाहरी रहो, बाहरी खाना पीना खाओ, वो वाला थाली आप लोग खुद धो के बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। उसके बाद लेडीज लोग के साथ तो, फीमेल के साथ तो हमेशा से होता हुआ आ रहा है, अलग अलग टाइप का सुपरस्टिशंस होता है, মানে ছোৱালীসকলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ বাইণ্ডিং, সেইটো কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কৰিব নোৱাৰে। সো ডিপেণ্ডিং অল দোজ সিচুৱেশনছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাটো এই সময়ত প্ৰয়োজন আছিল, এই কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছিল। क्लियर? बट ऑब्वियस कथा जे रिजर्वेशन किया गया था वो तो बहुत नॉर्मल सा बात है, लेकिन जब ये देश आगे बढ़ने लगा, इकोनॉमी ग्रो हुआ, डेवलप हुआ धीरे धीरे, अभी जैसे बोला जा रहा है बहुत बड़ा इकोनॉमी हो गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बोला जा रहा है,
क्योंकि मैं उतना नहीं मानता हूं। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बोला जा रहा है, वो सुनने के लिए जुमलाबाजी हो ही सकता है, बट है नहीं। जो भी हो, अभी बात यह है इसीलिए तो क्योंकि भीमराव अंबेडकर वो एक ऐसा मतलब आदमी थे जिनका अगर आप उनका डिग्री सुनेंगे, आमी बारू एजन बीटेक करा सिंपल ग्रेजुएशन, आपलोगोर মাজত कोनोबा ग्रेजुएशन लगते बीएड, कोनोबा ग्रेजुएशन यार पिছত मास्टार्स करा। भीमराव अंबेडकर এই পার্টিকুলার সময়ত তেখেতৰ ডাবল এমএ আছিল, লগত পিএইচডি আছিল, মানে ওয়ান অফ দা সাগে মানে হাইলি ট্যালেন্টেড ইন্ডিভিজুৱেলছ ইণ্ডিয়াত, মানে মই কমপ্লিট ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈ আছো বাৰু। আৰু এই মানুহজনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱাৰ বাবে। সো তেখেততো বাৰু তাতে পাৰ্চিয়েলিটি কৰাৰ বা বায়াসড হোৱাটো কোনো কথাই নাছিল। সো এই কাৰণে তেখেতে বাৰু গম পায় যে আজি বাৰু মই যি ভিজনত মই বনাই আছো, এই ভিজনটো আজি পৰা 50 বছৰ পিছত চাগে এপ্লিকেবল নহব। এই কাৰণে তেখেতে ফ্লেক্সিবিলিটি ৰাখিছে, যদি কোনোবা বিচাৰে কনষ্টিটিউশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰে। আজি মই কিবা এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিলো এই পাৰ্টিকুলাৰ কনচিডাৰ এইকেইটা কেছ কনচিডাৰ কৰি, হ'বই পাৰে আজি পৰা 25 বছৰ পিছত কেছ কেইটা বেলেগ হৈ গ'ল। তেখেতসকলে এই ৰুলিং পাৰ্টি তেতিয়া ডিচাইড কৰিব নহয় এইকেইটা চেঞ্জেছ হ'ব লাগে বা এইকেইটা হ'ব লাগে। চ' ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ৱাজ নেভাৰ ৰং, তেখেতে বাৰু কোনো ভুল ডিচিশ্যন লোৱা নাছিল। বাট আমাৰ ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ভীমৰাও আম্বেদকৰ মানে হোৱাৰ পিছত আমাৰ বেলেগ বেলেগ रूलिंग पार्टी আহিল और सब लोग सब पॉलिटिकल पार्टी अपना सत्ता बचाने के लिए रिजर्वेशन क्लास को अपीस करना बहुत जरूरी है। अभी रिजर्वेशन क्लास मतलब सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, रिजर्वेशन क्लास मतलब ये आप माइनॉरिटी बोलिए, जो मुस्लिम्स होंगे उन लोग को भी, जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, सबको अपीस करना बहुत जरूरी। अपीस करना मतलब जरूरत से थोड़ा ज्यादा देना, ताकि ये लोग कम से कम मेरा वोट बैंक ना खराब करे। उसके चलते देश का हालत यह है। लेकिन भीमराव अंबेडकर की इंटेंशन खराब नहीं था। तो जो भी हो, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल का मतलब है आमार कन्स्टिट्यूशन जेते आमी धुनियाके अलप डिटेल्सत पढ़िम ताते आमी गम पाम जे ताते बहुत एनेके बारु टपिक आछे जिकेटा टपिक आमार कारणे बा आजिर दिनत कोनो सरकार कोनो रूलिंग पार्टी तो बीजेपी हो कांग्रेस हो और व्हाटएवर कोई भी पार्टी चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकता। रिजिड वो चेंज नहीं होगा, वो बोला ही गया ये चीज आज मैं लिख रहा हूं 1950 में, ये आज से 100 साल 200 साल 500 साल बाद भी ये चेंज नहीं होगा, या चेंज होगा भी उसके लिए बहुत सारा नियम ऐसा होगा कि कोई अकेला रात को बोलेंगे कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, कल से 2000 रुपया नोट बंद, 500 रुपया नोट बंद, ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। और पार्टली फ्लेक्सिबल मतलब कुछ चीज समय अनुसार, सपोज एज फॉर एग्जांपल आजिर दिनत जितु आमार दिल्लीर जितु एक्यूआई ভ্যালু এটা আজি পৰা 5 বছৰ আগত নাছিল। So considering today's scenario, दिल्ली ताते नतुन किबा लॉ आटा आना स्वाभाविक कथा जाते मानुकेटा जाते अलग सेफ्टी थाके। So this is flexibility, ये तो आना संभव। बट मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा कि मैं दिल्ली को निकाल के मैं अलग एक देश बना दूंगा ना। उसके लिए आपको पूरा एकदम सबको प्रोसीड्यूर से सबको अलग अलग रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, पूरा देश का सिटीजन का राय लेके आपको आगे जाना होगा। ठीक है, तो पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। आओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पार्टली रिजिड। रिजिड बोली क्यों कहा है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल? बिकॉज इट ब्लेंड्स माने इजिली चेंज करा जाए। इट ब्लेंड्स इजिली केटा एनेके जागा आछे बा केटा माने एनेके सेक्शन আছে তাতে इजिली चेंजिंग करा जाए। एंड डिफिकाल्ट माने रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेसेस। अमेंडमेंट माने चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अमेंडमेंट। আমি আগত যাই এই ওয়ার্ডটো বার বহুত বার পাম আৰু কনস্টিটিউশনাল अमेंडमेंट। अमेंडमेंट माने चेंजेस करा। सो आमार इंडियन कन्स्टिट्यूशनत बहुत एनेके सेक्शन আছে তাতে इजिली फ्लेक्सिबल আছে, মানে इजिली चेंजेस करा जाए, इजिली अमेंडमेंट करा जाए। और बहुत एनेके बेलेग बेलेग सेक्शन আছে बहुत रिजिड डिफिकाल्ट হয় মানে चेंजेस करा আৰু सम पार्ट्स नीड अ सिंपल मेजॉरिटी। तो कहा सिंपल मेजॉरिटी मतलब इजिली हो जाएगा। मैं सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी दुटो बार बेलेग बेलेग হয় बारू। सिंपल मेजॉरिटी मैं इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर दिया हूं। सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी दी अपना फ्लेक्सिबल বস্তুখিনি চেঞ্জেস করা হয় और स्पेशल मेजॉरिटी लागे बारू फॉर रिजिड বস্তুখিনি अमेंड करार भावे। এটা এই सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, वो अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा बोलना। वो आप इतना समझ लीजिए, ये सब डिसीजन होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट তাতে অপোজিশন পার্টি থাকে, रूलिंग पार्टी থাকে, यार बाहर आरो बहुत बेलेग बेलेग पार्टी मानू থাকে। सिंपल मेजॉरिटी में हमेशा चीज बहुत इजीली चेंजेस किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट। स्पेशल मेजॉरिटी বা एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भावे अलग प्रोसेस तो अलग दिघोलिया प्रोसेस है। मतलब मैं आज चाहा मैं बोल दिया वही हो गया, नहीं होगा वैसे। ठीक है, तो ये नियम क्या है क्या नहीं है, कितना नंबर चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो मैं बाद में क्लास में बताऊंगा, अभी ज्यादा जल्दी हो जाएगा बोलना। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन क्लियर होला हमार। कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, एंड व्हाई क्यों पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल को है, दिस इज द रीजन। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट आओ,
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ऑरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रथम कौन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाइছে? प्रथम यूएसए बनाइছে, यूएस। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनवा कौन कंट्री बनाइছে बारो? यूएस। ठीक है, फर्स्ट यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री। क्या हो रहा है? यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, द कंट्री पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाइছে इन द ईयर 1787। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नेम द कंट्री व्हिच इंट्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम। आंसर होगा यूएसए। कौन ईयर बनाइছে? 1787। ये आप लोग जानते होंगे। जस्ट लाइक इंडिया, इंडियन इज ना, यूएसए वाज वंस ऑक्युपाइड बाय, कैप्चर्ड बाय इंग्लिश। ব্ৰিটিছ যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰাজত্ব কৰিছিল, ইউএছত ৰাজত্ব কৰিছিল বহুত বছৰলৈকে। ইউএছএ ব্ৰিটিছৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পালে 4 জুলাই 1776। 4 জুলাই 1776ত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পোৱাৰ পিছত 11 বছৰ, মোটামুটি 11 বছৰ পিছত 1787ত নিজৰ কনस्टिट्यूशन बनाले। ठीक है, तो इसमें क्या आपको याद रखना पड़ेगा? ये वाला डेट याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कि पहले कौन सा देश अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? आंसर होगा अपना यूएसए। और कौन से ईयर में बनाया था? 1787। ठीक है, ये वाला डेट भूल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम में, ये दोनों आता है। এতিয়া আহক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনস্টিটিউশনৰ কাহিনীটো কি, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনস্টিটিউশন কেনেকৈ বনোৱা হ'ল, কি হ'ল? এই যে যিসকলে হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ ৰিলেট কৰিব, আৰু যিসকলে পঢ়া নাই অলপ শুনি ল'ব। আৰু আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত বাৰু বহুত যেতিয়া গান্ধীয়ান এৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, গান্ধীয়ান এৰা 1915 পৰা 1947লৈকে মহাত্মা গান্ধীৰ এৰা বুলি কোৱা হয়, বিকজ এই সময়তে মহাত্মা গান্ধী এক্টিভ আছে। সো গান্ধীয়ান এৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, গান্ধীয়ান এৰা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, খিলাফত মুভমেণ্ট 1919ত হ'ল, হয়নে? ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আহি গ'ল, সৰি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কৈ আছোঁ, চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্ট 1922 হ'ল। এনেকৈ চলতে 1928ত আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত এটা কমিশ্যন আহিল, নাম আছিল চাইমন কমিশ্যন। 1928ত ইণ্ডিয়াত এটা কমিশ্যন আহিল, नाम আছিল साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन क्यों आया था इंडिया में? कुछ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए साइमन कमीशन बोले এটা কমিশন ইন্ডিয়াত আহিল ইন দ্য ইয়ার 1928 আৰু মেজৰ চেঞ্জেস কৰিলে আৰু ট্যাক্স বঢ়াই দিছিল, বহুত ট্যাক্স বঢ়াই, ল্যান্ড ট্যাক্স বহুত বঢ়াই দিছিল, ফাৰ্মাৰৰ ট্যাক্স বহুত বঢ়াই দিছিল। ঠিক আছে, তো সাইমন কমিশন 1928 আহাৰ পিছত বহুত ট্যাক্স বঢ়াই দিলে, ইণ্ডিয়াক বহুত বেছি সাপ্ৰেছ কৰিলে। সো এই সাইমনে কি কৰিলে আপোনাৰ, এই সাইমনে কি কৰিলে আপোনাৰ, গ'ল আপোনাৰ লাহোৰ। লাহোৰত আপোনাৰ আছিল লালা লাজপত ৰায়। লাহোৰত আছিল কোন বাৰু? লালা লাজপত ৰায়। पंजाब केसरी বুলি কোৱা হয়। पंजाब केसरी কাক কোৱা হয়? লালা লাজপত ৰায়। এই লালা লাজপত ৰায় আছিল লাহোৰ। লাহোৰ ষ্টেচনত এই সাইমন যেতিয়া ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলে আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বহুত ডাঙৰ এটা प्रोटेस्ट কৰা হ'ল, गो बैक साइमन बोली, साइमन गो बैक बोल के एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट का कौन मेन ये था? लाला लाजपत राय। ठीक है, इसी प्रोटेस्ट में क्या हुआ, उनको लाठीचार्ज हुआ, सिर में लाठी लगा और उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए और लाला लाजपत राय गॉट एक्सपायर्ड। ठीक है, दैट वाज द स्टोरी। यार पिছত भगत सिंह আহিল বা ইহৰ। সো এই যেতিয়া সাইমন কমিশন ইণ্ডিয়াত আহিল, তেখেতে বহুত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ লৈ আহিছিলে। তো সাইমন কমিশনে যিটো কৈ আছে বাৰু, এইটো ইণ্ডিয়াৰ পুৰাপুৰি ইণ্ডিয়াকে ইণ্টাৰেষ্টকে খিলাফ থাকে। তো যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যিসকলে বাৰু এটা গ্ৰুপ আছিল এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ, লালা লাজপত ৰায়, ইয়াৰ পিছত আমাৰ ভগত সিং, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ, তেখেতসকলে অলপ মাৰ কাটত বেছি মানে বিশ্বাসী কৰা মানুহ, মানে ই কৰা ট্ৰাষ্ট কৰা মানুহ আছিল। আৰু এটা গ্ৰুপ আছিল যিসকল বাৰু অলপ পঢ়া শুনা কৰা মানুহ, এডুকেশ্যনেল সাইডৰ মানুহ, যেনেকৈ মতিলাল নেহেৰু। ঠিক আছে, সো তেখেতে ব্যারিস্টার আছে তেখেতে। সো তেখেতে ক'লে যে নাই, ये सब आप छोड़िए, इंडिया एक सॉवरेन देश होगा, एक इंडिपेंडेंट देश होगा, আজি নহয় বাৰু কালি হ'বই নিশ্চয়কে। সো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনস্টিটিউশন আমাক বনাব দিয়ক, আমি আপোনাৰ নিয়ম মনে, আমি মানে ব্ৰিটিছৰ যিটো নিয়ম বনোৱা আছে একৰ্ডিং টু दैट নিয়ম আমি নচলো, আমি নিজৰ নিয়ম নিজে বনাই লম আমি। ठीक है, तो ये बहुत बार ऐसे झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन बोलता है, अगर इंडियन যদি ইমান যদি তেখেতৰ যদি ক্যাপাবিলিটি আছে, যদি সম্ভৱ, যদি ইমান যদি ক্যাপাবিলিটি আছে, আপোনালোকে নিজৰ কনস্টিটিউশন নিজে এটা বনাই দিয়ক, আমি চাম। যদি আপুনি নিজৰ কনস্টিটিউশন নিজে বনাব পাৰে, আমি মানি লম আৰু তেতিয়া। আৰু সো তেতিয়া কি, তেখেতে বহুত এটা শৰ্ট টাইম দিয়া হৈছিল। এই শৰ্ট টাইমৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা আৰ্লি ড্ৰাফট বনোৱা হ'ল।
আৰ্লি ড্ৰাফ্ট মানে কি আমাক কিবা এটা ডাঙৰ কিবা ডিগনিটাৰিজ বা কিবা ডিচি সাপোজ কোকৰাঝাৰৰ ডিচি তাতে কিবা এটা এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে চ' পটককৈ আমি এটা এপ্লিকেশ্যন লিখি তাতে নিদিওঁ আৰু ফাৰ্ষ্টত এটা ড্ৰাফ্ট বনোৱা হ'ব আমি অলপ চেক কৰিম কিবা ভুল হ'ল নেকি কিবা গ্ৰামাটিকেল মিষ্টেক হ'ল নেকি তাৰপিছত প্ৰিণ্ট কৰি ভালকৈ দিয়া হ'ব চ' এটা ড্ৰাফ্ট বনোৱা হ'ল ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত ঠিক আছে 1928 বনোৱা হ'ল উইদিন এ ভেৰি ভেৰি শ্বৰ্ট টাইম কোনে বনাইছিল মতিলাল নেহৰু বনাইছিল কোনে বনাইছিল মতিলাল নেহৰু কোন আছিল ফাদাৰ অফ জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল মতিলাল নেহৰু এই মতিলাল নেহৰুৱে বাৰু এটা ৰিপৰ্ট বনাইছিল এই ৰিপৰ্টৰ নাম আছিল নেহৰু ৰিপৰ্ট ঠিক আছে এই ৰিপৰ্টৰ নাম আছিল নেহৰু ৰিপৰ্ট কোনে বনাইছিল মতিলাল নেহৰু বনাইছিল কেতিয়া বনাইছিল 1928 বনাইছিল কিয় বনাইছিল বিকজ দ্যাট वाज চ্যালেঞ্জড বাই সাইমন কমিশন কি বনা अगर हिम्मत है तो बना के दिखाओ সো এটা নেহৰু ৰিপৰ্ট এটা বনোৱা হৈছিল অবভিয়াসলি আজিৰ যেটো আমাৰ কনস্টিটিউশন এই কনস্টিটিউশনৰ লগত এই নেহৰু ৰিপৰ্টৰ কোনো ৰিলেশন নাই বাট যেতিয়া এই নেহৰু ৰিপৰ্ট যেতিয়া সাবমিট কৰা হ'ল বিকজ মতিলাল নেহৰু वाज अ ভেৰি এডুকেটেড পারসন তেখেত এজন ব্যারিস্টার আছিল सो साइमन कमीशन और कंप्लीट जो ब्रिटिश फैटर्निटी আছিল তেখেত সকলে গম পাই গৈছিল যে इंडियंस को हम जो एकदम सोचते हैं कि ये सब से कुछ नहीं होगा वैसा नहीं है जो बना के दिया था वो कोई एरा गैरा नहीं बना सकता था उसमें ऐसा बहुत सारा एलिमेंट दिया गया था जो शायद बहुत सारे डेवलप कंट्री में भी नहीं था तो सोचा कि हाँ इसमें तो बात तो है लेकिन जो भी हो बाद में नेहरू रिपोर्ट दिया गया था दिस वाज द फर्स्ट टाइम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन একটা ड्राफ्ट बना হয়েছে क्लियर है अभी इसके बाद क्या हुआ सिलसिला आगे बढ़ा थोड़ा आगे बढ़ा यार पिছত कॉन्स्टिट्यूशन আমার একটা নিজৰ কনস্টিটিউশন লাগে আৰু এটা কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি বনাব লাগে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি মানে কি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি মানে যিসকলে কনস্টিটিউশন বনোৱা কাম কৰিব যিসকলে কনস্টিটিউশন বনোৱা কাম কৰিব সেইটো ক'ব কনস্টিটুয়েন্ट অ্যাসেম্বলি मैं इतने बहुत बेसी डिस्कशन न करूं बिकॉज इसको लेके बहुत सारा बातें आगे करना है आगे चल के मेरे क्लास में जब भी आपको CA वर्ड मिलेगा इसका मतलब आप समझ जाइएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीर मेन काम हल कॉन्स्टिट्यूशन बनवा और कॉन्स्टिट्यूशन बनवार भावे जिबिलाक रिलेटेड जिबिलाक बस्तु मेंटेन करा प्रयोजन गोटेइखिनि बस्तु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडरत आहिब सो कॉन्स्टिट्यूशन बनवा माने এনেকে নহয় যে মই ঘৰৰ পৰা এটা বনাই লৈ আহিলো আপুনি এটা নহয় বাৰু এটা ডেফিনিট বডি বনাব লাগিব তেখেতসকলে এইটো কাম কৰিব বাৰু হয় না নাই যে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এটা আমাৰ লাগে এটো ফার্স্ট কোনে এইটো প্ৰপোজাল দিছিল মানবেন্দ্ৰ নাথ ৰয় MN ৰয় শর্টত কোৱা হ'ব MN ৰয় ঠিক আছে মানবেন্দ্ৰ নাথ ৰয় ইন দ্য ইয়ার 1934 MN ৰয় ফার্স্ট ডিমান্ডেড ফর CA মানে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আৰু MN ৰয় ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হল কোনে ফার্স্ট প্রপোজ কৰিছিল এটো বাৰু সাইমন কমিশন হান্টার রিপোর্ট নেহৰু রিপোর্ট হৈ গল নেক্সট আপোনাৰ MN ৰয় কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কেতিয়া প্রপোজ কৰিছিল বনাব লাগে বুলি 1934 কেতিয়াবা এনেকে বস্তু দিয়ে যে কোন ইয়ার 1934 कभी ऐसे भी देता है इन द ईयर ऑफ 1934 हु प्रपोज्ड टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाबो लागे বুলি प्रपोजल दिছিল ऑप्शन থাকিব বাৰু MN रॉय JL नेहरू MK गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंसर विल बी MN रॉय ठीक है और ये MN रॉय और एक रीजन से बहुत फेमस है बिकॉज ये जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया যেটো বাৰু এটা টাইমত বহুত পপুলার বহুত ফেমাস এটা পলিটিক্যাল পার্টি আছিল এই CPI কমিউনিস্ট পার্টি ऑफ इंडियार फाउंड করেছিল और তেখেতে মেইন फाउंडर আছিল এই পার্টির आज के दिन में कम्युनिस्ट पार्टी आपको बहुत जगह एक्टिव नहीं मिलेगा एक्टिव है लेकिन बहुत ज्यादा पावर में नहीं है सिवाय केरला में अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का उसमें ये है एक रूल है और आपका इधर बंगाल में भी है लेकिन बंगाल में अभी तो TMC चल रहा है तो उतना ज्यादा नहीं लेकिन एक टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में 34 इयर्स एट ए स्ट्रेच रूल किए थे ठीक है ओके ये कम्युनिस्ट पार्टी मेन फाउंडर আছিল মানবেন্দ্ৰ নাথ ৰয় नेक्स्ट इन द ईयर 1935 এবছৰ পিছত 1935 এই ডিমান্ডটো বাৰু অফিশিয়াল ডিমান্ড মানে MN ৰয় ডিমান্ড কৰিছিল বা নেহৰু ৰিপৰ্টে এটা ই কৰিছিল বাট এইবিলাক অফিশিয়াল নহয় বিকজ অফিশিয়ালি আমার এই সময়ত অবভিয়াসলি আৰু কেইটামান পলিটিক্যাল পার্টি আছিল বাট ইন্ডিয়াৰ প্ৰমিনেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি আছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস INC সো INC বস্তুখিনি যেতিয়ালৈকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টক এটা স্ট্যাম্প পেপার মাৰি অফিশিয়ালি বস্তুখিনি নপঠাব এটা অফিশিয়াল বুলি কোৱাটো সম্ভৱ নহয় সো অফিশিয়াল ডিমান্ড কৰা হৈছিল কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি বনোৱাৰ বাবে বাই কংগ্রেস মানে বাই इंडियन नेशनल कांग्रेस কোন ইয়ারত इन द ईयर 1935 ईयर आपको याद रखना है समझे बात को ठीक है अभी कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया गया था नेक्स्ट आइए कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करा होल বাৰু ইয়াতে नेक्स्ट কি হল এতিয়া ব্রিটিশে
लाहे लाहे इंडिया ना ऑफर दिया स्टार्ट कर, ऑफर माने थोड़ा बहुत निगोसिएशन, बार्गेनिंग, ये मान लीजिए, ये कर लीजिए, हम लोग ये कर देंगे, वो बात सुन लीजिए तो हम लोग ये कर देंगे, এনেকে বাৰু অফার কেইটামান দিয়া স্টার্ট কৰিলে। এতিয়া ফার্স্ট কোশ্চেন হল অফারটো কিয় দিয়া হল আৰু কেতিয়াৰ পৰা দিয়া স্টার্ট হল? 1940 পৰা দিয়া স্টার্ট হৈছিল। কাৰণ হল এই সময় চলি আছিল বাৰু আপোনাৰ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অলরেডি স্টার্ট হৈ গৈছিল। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে চলিছিল ইয়াৰ পতা है? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ভেরি গুড 1939, 1939 পৰা 1945 লৈকে এই 6 বছর इंडियन वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलिছিল। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का हालत एकदम खराब हो गया था, ब्रिटेन का हालत एकदम खराब हो गया था। सो ब्रिटेन और सपोर्ट लगे, सपोर्ट लगे कोर পৰা सपोर्ट लगे, सोल्जर्स लगे, सोल्जर माने इंडियन सोल्जर लगे। और इंडियन बिकॉज 1940 आहता होते इंडियंस ऑलरेडी एक ভাল पोजिशनत आহি গৈছিল। माने जो आपका इससे अगर 15, 20 साल, 25 साल, 100 साल पहले अगर देखेंगे तब इंडियन का हालत खराब था, इंडियन में यूनिटी नहीं था, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सिपॉय म्यूटिनी हुआ था 1857, बहुत बुरी तरह फेल हुआ बिकॉज यूनिटी नहीं था। ये बोल रहे मैं मुझे ये चाहिए, वो बोल रहे मुझे ये चाहिए। लेकिन धीरे धीरे टाइम गया, अलग अलग आईएनसी बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनवा हल, बेलेग बेलेग पॉलिटिकल नेता আহিল और তেখেতসকলে বস্তুখিনি ইউনিটি এটা আনিব পাৰিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া 1940 লৈকে আহতে ইণ্ডিয়ান মানে ইণ্ডিয়াৰ যেটো এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স পাব এইটো মোটামুটি মোৰলেস কনফার্ম এটা হ'ব আৰু এনেকে এটা অৱস্থা আহি গৈছিল। আৰু সো এই সময়তে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলি আছিল। তো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলার সময়তে ব্রিটেনের যে সাপোর্ট লাগে ইন্ডিয়ান সোলজার্সর, এই কারণে অফার দেওয়া স্টার্ট করলে। ফার্স্ট যেটা অফার দেওয়া হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ অগস্ট অফার। अगस्त ऑफर এটা दिया हुआ 1940। की ऑफर दिया हुआ ऑफर देखिए, मैं अलग अलग करके एक ऑफर नहीं बताऊंगा बिकॉज वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए जैसे ऑफर एक दिया गया था कि हम लोग आपको ना डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। 1940 में बोला गया था हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस माने की, डोमिनियन स्टेटस माने की दो चीज होता है। डोमिनियन स्टेटस पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज माने आपका देश आप लोग संभालेंगे। डोमिनियन स्टेटस माने देश आपका ही रहेगा, बाहर से मैं इसको रूल करूंगा। सो কোয়া হৈছিল যে এটা পার্শিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স বলি কব পারে। সো অগস্ট অফার এটা দিয়া হল যে हम लोग इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, जिसका पूरा करी निंदा किया गया था। नहीं, অগস্ট অফার আমার না লাগে, এইবিলাক অফার কোনো প্রয়োজন নাই। আর এইটোর এগেইনস্টত এটা ডাঙৰ এটা রিভোল্ট হৈছিল, নাম মনত আছে নেকি? वेरी गुड। 1940 के बाद आया था आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। कौन क्या था? मैं इसमें और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू का एक टेक पार्ट आएगा, विनोबा भावे का एक टेक पार्ट आएगा, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन इतना भी जानना याद है, जरूरी है। 1940 অগস্ট অফার দিয়া হৈছিল। অগস্ট অফারত ইন্ডিয়ার ইন্টারেস্টেড বস্তু নাছিল, এই কারণে ইন্ডিভিজুয়াল সত্যাগ্রহ বলে একটা রিভোল্ট করা হৈছিল। নেক্সট আপনার আহিল কি ক্রিপস প্রপোজাল 1942। এই ক্রিপস প্রপোজাল বাৰু একেবারে কোনো ই নাই বাৰু, মানে উল্টা উল্টা প্রপোজাল, কোনো মাথা মুন্ডা একই নাছিল বাৰু। এটোর এগেইনস্টে একটা রিভোল্ট করা হল। কি নাম আছিল? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया है मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। नेक्स्ट আহিল আপোনাৰ ওয়েভেল প্ল্যান 1945। এই ওয়েভেল প্ল্যান কি হল বাৰু, এইটো ডিসকাস কৰাৰ বাবে শিমলাত মাতা হৈছিল সবকে, যিসকল বাৰু প্ৰমিনেন্ট যিসকল নেতা আছিল इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड ऑल, सबके शिमला माता हुई, शिमला। लेकिन उस टाइम कोई जा ही नहीं पाया बिकॉज ज्यादातर इंडिया का जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लोग प्रोमिनेंट नेता थे, सब उस टाइम अरेस्ट हुए थे, जेल में थे, कोई जा ही नहीं पाया। तो ये आपका फ्रूटफुल नहीं हुआ। यार पिछले আহিल अपना कैबिनेट मिशन प्लान, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कैबिनेट मिशन प्लान इन द ईयर 1946। আৰু মই আপোনাক এইটো কৈ দিও, এই তিনিটা প্ল্যান অগস্ট অফার, ক্রিপস প্রপোজাল, ওয়েভেল প্ল্যান, এই তিনিটা একসেপ্ট করা নাছিল। কোনে একসেপ্ট করা নাই? কোনে একসেপ্ট করা নাই? एक्सेप्ट करा नासिल बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। बिकॉज এই সময়ত যি সময়ত বাৰু এই ঘটনাকেইটা চলি আছিল 1940 1942, এই সময়তে most powerful political party was Indian National Congress, and after Indian National Congress next political party with the prominent আছিল that was Muslim League. Muslim League কেতিয়া বনোৱা হৈছিল? in the year 1906। वेरी गुड, 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया था। वेरी गुड। अभी आइए, ये तीनों ऑफर तो खारिज हो गया, आईएनसी भी खारिज किया, मुस्लिम लीग भी खारिज किया। लेकिन इसमें एक बात है, शायद मेरे इसमें है कि नहीं है, देखिए ये
আপনার এই চারিটার ভিতৰত ফার্স্ট তিনিটা অফার, অগস্ট অফার, ক্রিপস প্রপোজাল, ওয়েবল প্ল্যান, তিনিটা খারিজ করা হল। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড বোথ বাই মুসলিম লীগ এন্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ যে এই তিনিটা প্রপোজাল কিয় মুসলিম লীগে ডিনাই কৰিলে নালাগে বুলি, আৰু কিয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে ডিনাই কৰিলে? বিকজ দেয়ার রিজনস ওয়ার ডিফারেন্ট। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে মানা করা কারণ বেলেগ আছিল আৰু মুসলিম লীগে মানা করা কারণ বেলেগ আছিল। কি আছিল কারণ কেটা? देखिए कारण केटा की আছিল? पहले तो ये थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा है। ओनली कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। अकल कैबिनेट मिशन प्लान যেটো বৰ एक्सेप्ट করা হয়েছিল both by Congress, accepted by Congress and the Muslim League, hence constituent assembly was formed according to it। a cabinet mission plan যেটো মই নেক্সট ডিসকাশনত মই এটো CMP বুলি কম। হা, कैबिनेट मिशन प्लान যেটো 1946 দিয়া হৈছিল CMP, এটো একসেপ্ট কৰা হৈছিল both by Congress and by Muslim League আৰু কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যেটো কাৰণে ফার্স্ট কোনে প্ৰপোজাল দিছিল M.N. Roy ইন দ্য ইয়ার 1934। এটো ফাইনালি তে বনোৱা হ'ব আফটার कैबिनेट मिशन प्लान যেটো 1946 তে মোটামুটি 12 বছর একটা গ্যাপ হৈ গল, 12-13 বছর গ্যাপ একটা হৈ গল। ओके, अभी देखिए रीजन क्या हुआ। रीजन ये है कांग्रेस इसको मना किया था। ये इससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान आहार আগত তিনিটা প্ল্যান, ওয়েবল প্ল্যান, অগস্ট অফার আৰু ক্রিপস প্রপোজাল, এই তিনিটা প্ল্যান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে মানা কৰিলে। কাৰণ হল তেখেতসকলে অফার কৰিছিল ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস। ব্রিটিশে বাৰে বাৰে ইন্ডিয়াক ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস ল'ব কৈছিল আৰু ইন্ডিয়ানছৰ কি লাগে? পূৰ্ণ স্বৰাজ। So Indian National Congress did not accept the previous three proposals। আগত তিনিটা proposal Indian National Congress accept করা নাই। রিজন হল বিকজ ব্রিটিশ মানে ব্রিটিশে কি প্রপোজ করেছিল? ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রপোজ করেছিল, পূর্ণ স্বরাজ প্রপোজ করা নাছিল। এন্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন রিজন INC ডিনাইড। INC মানা করিল। बट मुस्लिम लीग रीजन तो बेलेग আছিল। मुस्लिम लीग क्या बोला? मुस्लिम लीग बोला था कि देखिए हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन हम लोग को एक सेपरेट मुस्लिम नेशन चाहिए। मुस्लिम लीगर डिमांड আছিল सेपरेट मुस्लिम नेशन और তেখেতসকলৰ ডিমান্ড, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল कांग्रेस डिमांड আছিল पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो ये जो आपका जो पहला जो तीन आपका प्लान था, ये तीनों प्लान में सेपरेट मुस्लिम नेशन बोल के कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग खारिज कर दिया। लेकिन ये कैबिनेट मिशन प्लान में क्या बोला गया था? कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया था कि हम लोग इलेक्शन करेंगे पूरा देश में कम्प्लीट। তেতিয়া বাৰু ইন্ডিয়া বাৰু এই ইন্ডিয়া নাছিল, তেতিয়া बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, देन पाकिस्तान वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये अखंड भारत में हम लोग जो इलेक्शन करेंगे, इस इलेक्शन के रिजल्ट के लिए वेट कीजिए कम से कम। उस रिजल्ट को देखते हुए अगर मुस्लिम लीग को बोला गया, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपनलोके आईएनसीर পৰা বেছি ডমিনেন্ট, आपनलोके कम्प्लीट এটা বেলেগকে নেশন এটা বনাব পাৰে, যদি आपनलोके কনফিডেন্ট থাকে যদি, তো লেট দ্য ইলেকশন হ্যাপেন। আমি আগতে ইলেকশনটা কৰাব দিয়ক। ইলেকশন হওয়ার পিছত যদি আপোনালোকে ভাল এটা রেজাল্ট পায়, যদি অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আপনাক সেপারেট प्रोविंस दिया होगा, सेपरेट नेशन दिया होगा, যেনেকে হয় আর। सो पहले इलेक्शन तो होने दीजिए। तो क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में उनको एक ऑप्टिमिज्म, एक थोड़ा उनको पॉजिटिव फीलिंग दिया गया था कि हाँ आप लोग कर सकते हैं। एक कारण अपना मुस्लिम लीग की कहते ठीक है अभी मान तो लेते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, सो मुस्लिम लीग और सेपरेट मुस्लिम नेशन वाज अ सेपरेट मुस्लिम नेशन वाज अ डिमांड। सेपरेट मुस्लिम नेशन वाज अ डिमांड। क्लियर? और कैबिनेट मिशन प्लान फाइनली दुजने एक्सेप्ट কৰিলে, मुस्लिम लीग एक्सेप्ट কৰিলে और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट কৰিলে। এতিয়া जो मेन क्वेश्चन आहे, तो कैबिनेट मिशन प्लान कौन सा ईयर में लाया गया था? आप बोलेंगे 1946 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ইয়াতে বাৰু তিনিজন ব্রিটিশ মেম্বার আছিল, ইন্ডিয়ান কিন্তু মেম্বার নাছিল। सो नेम द 3 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लानर मेंबर केटा नाम मुखस्त रखा प्रयोजन। क्वेश्चनत केनेके दिए मैं हेतु কৈ দিও আপোনাক। आपको क्वेश्चन में देगा नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर नहीं था। ठीक है, तो इसमें से कोई एक नाम जो नहीं रहेगा उसको आपको लिखना होगा। या उल्टा भी हो सकता है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन आदमी कैबिनेट मिशन प्लान का मेंबर था, तीनों अलग अलग नाम रहेगा और कोई एक ऑप्शन रहेगा, तीनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। এই যে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স, এই স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সৰ নামত আপোনাৰ আহিলে ক্রিপ্স প্রপোজাল, যেটোৰ কাৰণে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট हुआ था।
तो ब्रिटिश है, उनका खून तो नहीं सुधरेगा, जिसके चलते दिक्कत हुआ था उसको फिर से मेंबर बना दिया इधर। और इसमें भी एक बहुत बड़ा इसमें ये हुआ था, प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट बोलना शायद गलत होगा, लेकिन इसका भी बहुत कड़ी निंदा किया गया था सीएमपी का, कैबिनेट मिशन प्लान का। रीजन कि आप लोग के इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाबो, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके चलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, तो इंडियन तो होना जरूरी है। आपका 3 मेंबर में इंडियन एक भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा निंदा भी सुनने पड़ा था। और इट पर्टिकुलर ए सिचुएशन माने इन द ईयर 1946 सिनारिओ टा केनेके আছিল, ब्रिटिश was well aware of the fact, ব্রিটিশে অলরেডি গম পাইছিল যে আমার অবস্থা বেয়া, আমি আজি নহয় আজি পুরা 2 বছর 3 বছর পিছত ইন্ডিয়া আমাক এৰিবই লাগিব। অকল ইন্ডিয়া নহয়, আমাৰ এই সময়তে ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত বহুত কেইটা কান্ট্ৰি আছিল, আৰু মই এইটো চাগে বেলেগ এটা ক্লাছতো কৈছিলো বাৰু, যদি আপুনি ভালকৈ অলপ হিষ্ট্ৰী যদি চায়, ফ্ৰম আ স্পেন অফ 1946 টু 1952, 6 বছৰ কি 7 বছৰৰ ভিতৰত অকল ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স পাইছে এনেকে নহয়, बहुत केटा कंट्री इंडिपेंडेंस पाइसिल, ठीक है। तो ब्रिटिश का हालत तो पहले ही खराब हो गया था। अब ब्रिटिश को छोड़ना होगा, इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन देना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना होगा, और जो इसके बारे में बातें करेगा मिशन प्लान, वो आपको उसमें देखिए कोई भी एक इंडियन नहीं है, ठीक है। ओके, सो 3 जन मेंबर আছে सीएमपी मेंबर। नेक्स्ट আহক, এতিয়া আপোনাৰ प्रोविजन्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, এই যে कैबिनेट मिशन प्लान बनवा होबो, माने बनवा होल जे अभी सीट डिसाइड करेंगे, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद उसमें से चुना जाएगा कि कौन जीता, आईएनसी जीता कि मुस्लिम लीग जीता, उसमें से कौन नेता आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो उसके चलते सीट डिसाइड किया गया कि जैसे मान लीजिए यूपी में, आज के दिन में यूपी में लगभग 50 से ज्यादा सीट है, वेयर एज जब मैं 5 साल बाद जो मेन जो इलेक्शन होता है, जो जहां पे आपका पूरा देश का गवर्नमेंट चेंज होता है, मैं उस इलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसमें यूपी डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, यूपी नंबर ऑफ सीट्स मोर देन 50+, वेयर एज इन सिक्किम অকল এটা सीट, सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन द एरिया जी हो। सो এই সময়তে ডিসাইড করা হল যে টোটাল ইন্ডিয়ার নাম্বার অফ সিট কেটা হবে 389, এই সময়তে ডিসাইড করা হল টোটাল ইন্ডিয়ার নাম্বার অফ সিট কেটা হবে 389, দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যায়? ঠিক আছে, 389। এই 389 এর ভিতৰত ভালকে যদি চাই আপুনি, দুটা বেলেগ বেলেগ পার্ট আছিল, 296 আৰু 93 প্লাস करक, দুটা प्लस করে আপনি চাবো 389 এ পাবো আপনি। ये 93 वाला सीट क्या है? ये 93 वाला सीट है नॉमिनेटेड प्रोविंस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, वेयर एज 296 इलेक्टेड, माने आउट ऑफ 389, এই 389 सीट जो कमप्लीट इंडिया डिसाइड करा হল যে এই কেটা সিটত ইলেকশন করা হবে, গোটেই কেটা সিটত ইলেকশন নহয়, তার ভিতর 296 सीटों इलेक्शन होगा, बाकी केटा प्रिंसली स्टेटों पर। प्रिंसली स्टेट माने जो खुद उसका राजा है, वो राजा उसका चलाता है, जमींदार उसका चलाता है, और टैक्स ब्रिटिश को देता है। तो ब्रिटिश के साथ उसका अच्छा इक्वेशन अच्छा था, तो तक तो किसी डिस्टर्ब करबो ना जाए, ठीक है, आप एक भेज दीजिएगा, ये दुर्गा पूजा कमिटी जैसा, बाड़ी से एक जन के बड़ो एक जन के पाठा दिए, घर से किसी आदमी को भेज दिए, ठीक है ना, वैसा ही है कि किसी को भेज दीजिएगा, ठीक है। तो यार पूरा नॉमिनेटेड मतलब जिसको नॉमिनेट किया जाएगा, तुम घर के सीनियर हो, तुम जाओ नॉमिनेट किए, या तो बोलो इलेक्शन हो, इलेक्टेड। सो 296 सीट ऑफ इलेक्शन, 93 सीट ऑफ नॉमिनेशन। और नॉमिनेटेड प्रोविंस को बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, प्रिंस मतलब जो आपका अपने, जैसे जब देश जब आजाद होने वाला था इन द ईयर ऑफ 1947, যেতিয়া কান্ট্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পাবো, আৰু এই সময়তে কেইটামান প্রিন্সলি স্টেট আছিল, নাম তাৰপিছত আৰু सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन गो तेखतलोक यूनिफाई अंडर आइल। जैसे कि कश्मीर नहीं आ रहा था इंडिया में, जैसे कि हैदराबाद नहीं आ रहा था इंडिया में, जैसे कि जूनागढ़ नहीं आ रहा था इंडिया में, उसके बाद इन लोग को समझा के बुझा के बाद में इंडिया में लाया गया। तो वो लोग उस टाइम तक प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब वो ना पाकिस्तान के अंडर था ना वो इंडिया के अंडर था। किसी देश के अंडर आएंगे तब वो प्रिंसली नहीं रहेंगे, वो देश के अंडर नहीं था, खुद ही उसका राजा था, खुद ही उसका सब कुछ सिस्टम चलाएंगे, समझे? ठीक। এতিয়া এই 296 যে সিট আছিল, ইয়াৰ পৰা আকৌ দুটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট, 292 আৰু 4 প্লাস কৰক 296। এই 292 সিট মানে কি, ইয়াতে বাৰু গভৰ্ণৰ প্ৰভিন্স, আমাৰ তেতিয়া বাৰু মোষ্ট অফ দ্য প্ৰভিন্সত এটা এটা গভৰ্ণৰ পোষ্টিং আছিল, গভৰ্ণৰৰ আন্ডাৰত আছিল। গভৰ্ণৰ এটা গভৰ্ণৰ মানে বেসিক্যালি চাব আপুনি, ইয়াতে অবভিয়াসলি ভাইসৰয় আছিল আমাৰ লৰ্ড মাউণ্টবেটেন, লাষ্টতো লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আছিল। সো লৰ্ড মাউণ্টবেটেন was the main viceroy, ইয়াৰ আন্ডাৰত কেইটামান তেখেতৰ আন্ডাৰত কেইটামান আৰু ই আছিল। সো মেইনলি এই 292 সিটস ডাইৰেক্টলি ওয়ার আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ ব্রিটিশ ক্রাউন, ব্রিটিশ ক্রাউনের ডাইরেক্ট কন্ট্রোল আছিল।
और ये सारिटा एने का प्रोविंस आसिल जिकेटा ब्रिटिशर अंडर आसिल बट ऑल ऑफ रिमोट एरिया, उसमें बहुत दूर हो जा रहा है, तो उसमें एक चीफ कमिश्नर को बैठा दिया गया था, आप उधर का हुक्का पानी देखिए और हम लोग को मंथली या ईयरली उधर से टैक्स भेजिए। ठीक है, ये थोड़ा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह उसको नहीं माना गया था, 4 अलग कर दिया था। जो टोटल आपका हो गया 29, इसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। तो दिस इज आपका, ये स्ट्रक्चर को याद रखना है, बिकॉज मैं आपको ये भी बता दूं पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे इधर तक इसमें से आपका যদি আপনি ভালকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন চায় ফ্রম এসএসসি রেলওয়েজ অর আমার অসম সরকারের পরীক্ষা অকল এই স্ট্রাকচাৰৰ পৰা বহুত কেটা কোশ্চেন আহে, অকল স্ট্রাকচাৰ পৰা, যেনেকে সিএমপি কেবিনেট মিশন প্ল্যানে যেতিয়া ডিসাইড কৰি ইলেকশন হ'ব টোটাল কেইটা সিট নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল 389 388 390 391 389। ইয়াৰ পিছত আহে যে সিএমপি যে ডিসাইড কৰি ইলেকশন কেইটা সিটত হ'ব, অপশন কিন্তু 389 থাকিব, কিন্তু सब तो याद रखा 389 तो याद हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन सब में नहीं हुआ था, उसमें से आपको हटाना पड़ेगा 93 को, तो ये नंबर आपको पूरा पूरी याद रखना है। ठीक है, अभी इधर आइए, এতিয়া বস্তু চাব যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনোৱা হ'ব, কান্ট্রি এটা ট্রানজিশন ফেজত আহি গ'ল। ট্রানজিশন ফেজ মানে अभी सबको पता है, ব্রিটিশসকো বাৰু ব্রিটিশসকলো গম পায়, ইন্ডিয়ানসও গম পায় যে আমাৰ এতিয়া কান্ট্রিতে ইন্ডিপেন্ডেন্স পাবো, बट ये ऐसा बात नहीं है कि कल सुबह उठे गुड मॉर्निंग बोले जाओ इंडिपेंडेंस, वैसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होना पड़ेगा। मेरा नॉर्मली होता ना कि मैं मान लीजिए आज के दिन में বিলাসীপুৰ ষ্টেচনৰ ইনচাৰ্জ হ'বই পাৰে যে মোৰ বাৰু এই মাৰ্চত 4 বছৰ হ'ব আৰু এবছৰ 2 বছৰ পিছত মোক ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ এটা অৰ্ডাৰ ওলাব পাৰে। যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ ওলাব বাৰু এনেকে নহয় যে মোক ৰাতি ट्रांसफर ऑर्डर उलाले और অহাকালি ক'ব যে आप बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल जाइए, दूसरा कोई आ जाएगा, ये संभव नहीं है। तब क्या होगा, वो जो इंचार्ज बनेंगे वो आएंगे मेरे इधर, मैं भी रहूंगा 4 दिन 5 दिन, हम दोनों एक साथ इकट्ठा काम करेंगे। मैं उनको जितना भी रजिस्टर्स मेरे स्टेशन में है सब समझाऊंगा, ये अपडेट है, ये अपडेट नहीं हुआ, इस कारण से अपडेट नहीं हुआ। मेरे स्टेशन में मान लीजिए आज के दिन में शायद 5 या 6 करोड़ का सामान होगा जो कि मेरे कस्टडी में है, तो उनको समझाना होगा देखिए ये हिसाब है, मैं कुछ 2 नंबरी नहीं किया हूँ। एक मोबाइल भी मुझे अगर स्टेशन से दिया गया है, वो मोबाइल का भी उनको हिसाब देना पड़ेगा, सिम का भी हिसाब देना पड़ेगा। मेरे अंदर अगर ये सोफा है, ये आपका चेयर है, ये टेबल है, सब उनको हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरा स्टेशन में काम लेने। जब मैं दूसरा स्टेशन में एज एन इंचार्ज जाऊंगा पर्टिकुलर সেই স্টেশন আকৌ ইনচার্জ আকৌ মোক বস্তুখিনি বুজাব আৰু সো এটা ট্রানজিশন ফেজ সদায় থাকে আৰু থাকাটো স্মুথ ট্রানজিশন হোনা জৰুৰী है। সো এটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বনোৱা, ইন্টারিম ওয়ার্ডৰ মানে কি, টেম্পোরারি, ভেরি গুড, ইন্টারিম और ওয়ার্ডৰ মিনিং হল টেম্পোরারি। সো এটা টেম্পোরারি গভর্নমেন্ট বনোৱা হল আৰু এইটো কাম কি আছিল, ওয়াই फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। मार्क माई वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लिख के भी रख सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाई द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनाया गया था, फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर्स। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं मार्क माई वर्ड्स बिकॉज ये क्वेश्चन में आया था, व्हाई द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, 4-5 ऑप्शन था, फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर्स। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर्स, তাতে বেলেগ বেলেগ মানুহ বেলেগ বেলেগ ই দিয়া হল, যেনেকে প্রেসিডেন্ট আছিল, প্রেসিডেন্ট অফ দ্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল, ভাইসরয় গভর্নর जनरल। এটা অলপ চাব, ইয়াতে অলপ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে। इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था विस्काउंट वेवल। विस्काउंट वेवल, ये वेवल नाम तो पाइसे नहीं अपनी, वो जो वेवल प्लान था जो ये वाला वेवल है, विस्काउंट वेवल। बट देखते बारू फेब्रुआरी 1947 लेके आसिल, ইয়াৰ পিছত তেখেতে ইয়াৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন মানে ৰিটায়াৰমেন্ট হৈ গ'ল, তাতে বেলেগ পোষ্টত গুচি গ'ল। নেক্সট আহিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। সো লৰ্ড মাউণ্টবেটেন ফ্ৰম ফেব্ৰুৱাৰী 1947 এই প্ৰেসিডেন্ট আছিল বাৰু, ইন্টারিম গভর্নমেন্টৰ প্রেসিডেন্ট আছিল বাৰু মাউণ্টবেটেন। কমান্ডার ইন চিফ ক্লাউড অচিনলেক, ये প্রেসিডেন্ট আৰু কমান্ডার ইন চিফ এই দুটা পোষ্ট ইন্ডিয়ানছক দিয়া হোৱা নাছিল। এই দুটা পোষ্ট ইন্ডিয়ানছক দিয়া নাছিল বাৰু, বিকজ এই দুটা পোষ্ট একেবাৰে ভাইটাল পোষ্ট আছিল, ইম্পৰ্টেন্ট মানে একদম মানে হেড পজিশন আৰু সেই দুটা বাৰু ব্ৰিটিছে ৰাখিলে, বাকি কেইটা ইন্ডিয়ানছক দিলে। ভাইস প্রেসিडेंट আছিল एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन जवाहरलाल नेहरू। एक कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, कॉमनवेल्थ, वेल्थ माने सम्पद, कॉमन माने सबका, सबका संपत्ति, कॉमनवेल्थ माने इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स হয়, गम पाए ना पाए, वाई, ये तो आपका यूएसए में नहीं, ये तो आपका शायद ब्रिटेन में नहीं होता है, ये तो कोई आपका इसमें नहीं होता, इंडिया में क्यों कॉमनवेल्थ गेम होता है। कॉमनवेल्थ माने এই পার্টিকুলার নেশন কান্ট্রি যিকেইটা এটা টাইমত ব্রিটিছৰ আন্ডাৰত আছিল, তেখেতসকলৰ এটা বেলেগ এটা গ্ৰুপ আছে, এটা ইউনিয়ন আছে। এটা মই পিছত চাম বাৰু, এটলৈ অলপ ডিসকাশন হ'ব বাৰু, आफ्टर इंडिपेंडेंस এটলৈ হয় বাৰু। सो कॉमनवेल्थ वो सब कंट्री उसके अंडर आएगा जो एक टाइम ब्रिटिश के अंडर था, तो
तो ब्रिटिश जब छोड़ते हुए जाएगा, मैं देश को जब मैं छोड़ दूंगा, अभी आप लोग इंडिपेंडेंस है, तो ब्रिटिश कंट्री के एक ऑप्शन दिए कि क्या आप लोग कॉमनवेल्थ का पार्ट होना चाहेंगे। कॉमनवेल्थ का पार्ट होना मतलब ये जो आप लोग का एक ग्रुप बनेगा और हम लोग भी इसमें रहेंगे, इसको हम लोग सुपरवाइज करेंगे, आगे चल के आपको कभी भी कुछ दिक्कतें आए, फिनेंशियल या स्ट्रेटेजिकल, कोई भी ये चाहिए, कोई दूसरा देश आपको अटैक कर दिया, तो ये जो एक ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, बिकॉज आप लोग कॉमनवेल्थ के ग्रुप हैं और मैं भी उसमें रहूंगा। ये होता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश से रूल करने वाला देश ही रहेगा, बाकी देश नहीं रहेगा। क्लियर है? आगे হোম এফেয়ার্স, ইয়াতে আৰু এটা বস্তু চাব বাৰু, বিকজ এতিয়া না জাষ্ট অকল বস্তুখিনি অলপ বুজাত ট্ৰাই কৰক। জাষ্ট সিট কেইটা নমিনেট দিয়া হৈছে, কোনে কেনেকে ই হ'ব, আৰু এতিয়া কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট কিন্তু পোৱা নাই। কিন্তু যেহেতু ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট পোৱা এতিয়ালৈকে ইলেকশ্যনে হোৱা নাই, ৰিজাল্টে অহা নাই, চ' কেবিনেট মিছন প্লেনে কি কৈছিল? कैबिनेट मिशन प्लान है तो बार आईएनसी राजी हुई और मुस्लिम लीग राजी हुई। तो अभी तक तो डिसाइड हुआ ही नहीं कौन देश को चलाएगा। इसलिए आप गौर कीजिएगा, जब ये अलग अलग पोस्ट इसमें दिया गया था ना, सबको जब अलग अलग पोस्ट इसमें दिया जा रहा था, उसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू था वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर्स, जवाहरलाल नेहरू आईएनसी पार्ट असेल, वेयर एज होम अफेयर्स इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सरदार वल्लभभाई पटेल आईएनसी पार्ट असेल। এনেকে যদি আপনি চায়, कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर मुस्लिम लीग का पार्ट था, फिनांस लियाकत अली खान मुस्लिम लीग। ये नाम बहुत फेमस है, बहुत फेमस नाम है। क्यों? फिनांस मिनिस्टर दिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट और फिनांस मिनिस्टर एग्जाम एबाद दुबारा बहुत बार रहा क्वेश्चन, हु वाज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कैबिनेट मिशन प्लान? आंसर विल बी लियाकत अली खान फ्रॉम मुस्लिम लीग। ये आदमी क्यों फेमस है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। যেতিয়া পাকিস্তান বনোৱা হ'ল, তেখেতক ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনোৱা হৈছিল। ক্লিয়াৰ? ওকে, আকৌ চাব বাৰু, এই গোটেইকেইটা মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, এবাৰ ভালকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব আৰু যিমানকেইটা মনত থাকে আৰু হা, एक बार दो बार रीडिंग देंगे, पूरा पूरी याद नहीं भी रहेगा, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। ठीक है? ओके, ठीक है। ये रेलवेज का आता है, रेलवेज का भी आया है एक बार दो बार। रेलवेज मिनिस्टर किसको दिया गया था? रेलवेज एंड कम्युनिकेशन अब्दुल रब निस्तर मुस्लिम लीग। ठीक है? ओके, आओ हुआ এতিয়া যে সিটস দিয়া হ'ব নহয়, সিট এতিয়া এলোকেট কৰা হ'ব। সিটস এলোকেট কৰা সময়তে যে কোন সিটৰ পৰা কেইজনে কেনেকে দিয়া হ'ব, আৰু তাতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হ'ল, তাতে ৰিজার্ভেশন दिया होला। এইটো বাৰু নতুন কথা নহয়, যিসকলে হিস্ট্রি অলপ পঢ়িছে নিশ্চয়কৈ গম পায়। ब्रिटिश का पहले से आपके यही रहता था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड करेंगे रूल करेंगे उसके बाद। ठीक है? तो आपको तीन अलग अलग कैटेगरी बनाया गया था। सीट्स एलोकेटेड टू ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड अमंग थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज। तीनटा प्रिंसिपल कम्युनिटीजर মাজত रिजर्वेशन दिया होल सीटर भावे, जो आपको सीट मिलेगा। कैसे क्या सीट मिलेगा? मुस्लिम्स को दिया गया, सिख को दिया गया, जनरल को दिया गया। जनरल में बाकी सब आ गया, हिंदू हो गया, बाकी सब हो गया, जनरल में आएगा। मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, जनरल अलग हो गया। सीट वाज टू बी अलॉटेड, ये वाला देखिए, फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन माने 10 लाख। सपोज मैं बोलूं एटा जगह, ये एक प्रोविंस है, ये एक प्रोविंस है, इसमें आपका मान लीजिए 50 लाख आदमी है, 50 लाख आदमी है, 50 लाख। 50 लाख में से मान लीजिए 10 लाख मुस्लिम्स है, 40 लाख हिंदू है। मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। 10 लाख मुस्लिम्स एंड हिंदू 40 लाख। सो यार पर जेतिया इलेक्शन जेतिया सीट आहिब নহয়, पर 1 मिलियन, हर 1 मिलियन माने हर 10 लाख में से कोई एक आदमी को चुना जाएगा। माने ये 10 लाख मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुस्लिम आएंगे और 40 लाख हिंदू में से 4 हिंदू आएंगे। एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एजन आहिब पारे आरो এই রেশিওত বস্তুখিনি মেইনটেইন করা হবে। क्लियर? বুঝা तो ये रेशियो आपका होना, जैसे मान लेते हैं इसका ये और इसको ऐसे भी समझाते हैं। यूपी पर आजिर दिनों 50+ ইয়ার্স है, सिक्किमत पर एजन वाई, बिकॉज যদি আপনি ভালকে চায়, आउट ऑफ 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इंडिया, आटत के बेसिक पॉपुलेशन तो यूपी। तो जहां पे जितना पॉपुलेशन, उसमें से नेता भी ज्यादा आएगा, बिकॉज नेता ज्यादा रहेगा तो इतना पॉपुलेशन को मैं मैनेज कर पाऊंगा। मैं एक नेता दूंगा और इतना पॉपुलेशन को मैनेज कीजिए, संभव ही नहीं है। तो अभी उस टाइम मान लेते हैं हैदराबाद में बहुत ज्यादा, हैदराबाद में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और असम में मान लेते हैं बहुत कम पॉपुलेशन कंपेयर टू हैदराबाद।
तो आसाम से अगर मैं 10 आदमी 10 नेता को ला दूं और हैदराबाद से 2 नेता लाऊं, कैसे मेंटेन होगा जगह? इसीलिए पॉपुलेशन के बेसिस पे नेता आएगा। वो जो 389 सीट्स था उसके बाद डिवाइड किया गया था, अलग अलग जगह से कितना नंबर ऑफ नेता आएगा डिपेंड करेगा उधर का पॉपुलेशन कितना है, समझे? और वो किस रेशियो में? 1:1 लाख। सो 1:10 लाख, रेशियो विल बी 1:10 लाख, माने आउट ऑफ 10 लाख पॉपुलेशन एक एक नेता आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन जो होबो, इलेक्शन जो केने के होबो, की प्रोसेस इलेक्शन होबो। वो ऐसा तो नहीं होगा चोर पुलिस खेलने वाला, जाएंगे उठा देंगे बाबू, हाँ बाबू के, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या इलेक्शन होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओवरऑल इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। थोड़ा समझ लेते हैं बात क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओवरऑल इसको लेकर हम लोग बाद में फिर से बात करेंगे जब प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शनर कथा आमी पातिम। এতিয়া নহয় বাৰু, মোটামুটি 5-6টা ক্লাছৰ পিছত হ'ব বাৰু, বাট ফৰ টাইম বিং ইতনা समझ लीजिए व्हाट इज दिस। এটা হয় যে সাপোজ এটা ক্লাছত 40 জন স্টুডেন্ট আছে, তো 40 জন স্টুডেন্টৰ এটা ক্লাস ক্যাপ্টেন ওলাব লাগে, ক্লাস कैप्टन सेलेक्ट কৰিব লাগে। तो क्लास कैप्टन सेलेक्ट কৰিব লাগে, तो अभी सब कोई बोलेगा वोट दो, तो सब तो कोई अपना नाम देके आएगा, तो उसमें तो चयन करना मुश्किल हो जाएगा। तो हेडमास्टर है, स्कूल हेडमास्टर की कॉलेज है, ठीक है, आप लोग 40 आदमी हैं, ये 3 हम लोग का ये है ए बी सी, ये 3 जनक सेलेक्ट करा हो, कुछ भी मान लीजिए आकाश, वरुण और कुछ भी एक C4 चक्रवर्ती कुछ मान लीजिए, ये 3 जनक सेलेक्ट करा हो। तो ये 3 जनक भीतर आपने सेलेक्ट करो अपना कैप्टन कौन होगा। तो एक तो तरीका हो गया कि मैं जाऊंगा और मैं सिर्फ ए को सिलेक्ट करके आ जाऊंगा, मेरा वोट ए के लिए, कोई आएगा बी के लिए, कोई जाएगा सी के लिए। उसके बाद 40 जन का वोट काउंट किया जाएगा, यार भीतर जी मानो जने मैक्सिमम वोट पाबो ताकि विनर, दिस इज द वे इट हैपेंस। নহয় সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট, ইন শর্ট ইট STV বুলি কোৱা হয়। STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एटू माने होल जे ना आप किसी एक को नहीं चुन सकते, आपको एक रैंकिंग देना होगा कि माय फर्स्ट चॉइस इज बी। अगर कोई जीतेगा पहला पोजीशन में मेरा बी है, दूसरा पोजीशन में मेरा सी है, तीसरा में ए है। मतलब मैं इसको एकदम नाकार नहीं रहा हूं, अगर किसी कारण से मेरा थर्ड ऑप्शन लिया जाए, कब लिया जाएगा मैं वो भी बोल रहा हूं, तब मेरा थर्ड ऑप्शन को आप ए ले सकते हैं, लेकिन पहला चॉइस मेरा बी रहेगा। सो अपनी एजोलक सिलेक्ट नकरिब, अपनी मोटामुटी एक रैंकिंग দিব, रैंकिंग ये 1 नंबर मेरा चॉइस है, ये 2 नंबर चॉइस है, ये 3 नंबर चॉइस है, ये 4 नंबर चॉइस है। अब ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है, मान लेते हैं आपने या तो 40 जने वोट दिले, 40 जने वोट दिले, सपोज ए अपना ए पालो 17टा ভোট, ए बारो 17 ভোটস पाले, बाकी के जन 15टा 14टा এনেকে কিবা কিবি পাইছে, टोटल 40 वोट्स। सो ए जीत गया, ये तो 17 वोट, बाकी तो इसका सबसे कम है, तो ये जीत गया। तो बाकी लोग का वोट तो बर्बाद हो गया ना। बाकी लोग जो बोल रहा था मुझे बी चाहिए, मुझे सी चाहिए, तो उनका तो वोट का कोई तो वैल्यू ही नहीं रहा। ए का ही सिर्फ वैल्यू, जो 17 वोट का वैल्यू है उसका ही सिर्फ रिजल्ट मिला। इसलिए जब रैंकिंग दिया जाएगा तब क्या होगा, सबको देखा जाएगा कि सपोज ए के जन मानु আছে 1 नम्बर रैंकत থাকা মানু ইয়াতে ভিতর কোনটো বেশি 1 नम्बर रैंक पाले, इसको ना सबसे ज्यादा 1 नंबर रैंक इसको सब कोई दे रहा है, मतलब ये हम लोग का मेन नेता होगा। उसके बाद 2 नंबर सब मिलकर इसको 2 नंबर दे रहा है, तो ये हम लोग का दूसरा नेता होगा। एटू रिजल्ट की है भोट केटा वेस्ट न हो, लास्ट रैंकिंग लेके भोट केटा फायदा होगा। ठीक है, तो आपको रैंकिंग जब करेंगे तो आपका कोई भी वोट आपका जाया नहीं होगा, कोई ना कोई वोट में आपको कोई ना कोई जगह काम, आपका पहला वाला ऑप्शन में काम नहीं आया। मान लीजिए सब कोई बोल रहा है ए मेरा पहला ऑप्शन, ए तो जीत गया, लेकिन आप बोले बी मेरा पहला ऑप्शन है, तो आपका तो काम नहीं, लेकिन आपका बी नहीं होगा तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपसे लिया जाएगा, ताकि आपको दूसरा वाला सिलेक्शन में आपका वोट का हेल्प लिया जाए। तो आपका वोट का पूरा जो आपका वोट का चिट्ठा है, जो पेपर আছে বাৰু এটা ওয়েস্ট নহয়, अपना এটো সিলেকশনত হেল্প কৰিব আৰু এটো। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ओके, এতিয়া सब हो गया। कहां पे वोट होगा, কোন কোন ঠাই পৰা, কোন কোন প্ৰভিন্সৰ পৰা কেটা সিট আহিব, কোন কেটা ইলেকশন, কোন কেটা ইলেক্টেড হ'ব, কোন কেটা নমিনেটেড হ'ব, গোটেইখিনি ডিসাইড হৈ গ'ল। ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বনোৱা হৈ গ'ল, ইন্টারিম গভর্নমেন্টত আইএনসিৰ পৰা डेजिग्नेशन दिया होल, मुस्लिम लीगर पर डेजिग्नेशन दिया होल। अभी नहा धोआ के आपका इलेक्शन का डेट शुरू डिसाइड हो गया, और जुलाई अगस्त में इलेक्शन चला पूरा देश भर में, पूरा गरम माहौल है एकदम। जुलाई अगस्त 1946 मोटामुटी 1 माह बेसी आमार कमप्लीट इंडियात इलेक्शन कन्टिन्यू थाकिल, बेलेग बेलेग ठाई इलेक्शन चलि आछे आरो। ठीक है, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद अभी रिजल्ट आया, इलेक्शन होने के बाद अभी रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट आने के बाद क्या देखा गया, रिजल्ट आহি গ'ল, रिजल्ट अহাৰ পিছত কি দেখা পালে যে মেজৰিটি ভোট পালে কংগ্ৰেছ, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ,
ठीक है, 208 ভোটস। মুসলিম লীগে পালে সেকেন্ড ডমিনেন্ট মুসলিম লীগ আছিল 73 ভোটস, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাৰ্টিও কেইটামান আছিল 15টা সিট পালে। ক্লিয়াৰ? ওকে, সো ক্লিয়াৰ উইনাৰ INC। আৰু এইটো কাৰণে মুসলিম লীগে অফেন্ডেড হ'ল। মুসলিম লীগে যেতিয়া গম পালে, রেজাল্টটো চাই যেতিয়া গম পালে 73 সিট, তো আমাৰ যিটো সেপাৰেট কান্ট্ৰিৰ যিটো দাবী আছিল, আমি ভালকে বস্তুখিনি ক'ত হ'ব আৰু নাই, নিমিলে বস্তুখিনি। আমি এতিয়া আমাৰ যিটো এতিয়া কেবিনেট মানে মিনিস্টার অফ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो बनवा हो, ताते मुस्लिम लीग मानो ताते घुमाबो नोरे, नॉर्मल बात है। बीजेपी जीता तो बीजेपी का नेता आएगा, कांग्रेस का नेता उसमें कैसे आएगा, कैबिनेट में नहीं आ पाएगा। तो उसके चलते वो लोग क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट कर दिए मुस्लिम लीग, बॉयकॉट। ठीक है, बॉयकॉट करार पिছত नंबर ऑफ सीट 299 हो गल आफ्टर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन जेते पार्टीशन हो गल, सो सेपारेट के मुस्लिम नेशन बनवा हल, तो ताते बहुत केटा प्रोविंस ताते गुसी गल, जेটো टोटल 389 सीट আছিল এটো এটা কমি 299 हो गल। ठीक है, मुस्लिम बॉयकॉट करके वो अपना देश बाद में तो वो तो माउंटबेटन करके गया था। ठीक है, जब ये देश जब बांटा गया था, पार्टीशन हुआ था, तब देश का प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था? देश का तो नहीं, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था? What was the name of the British Prime Minister when India and Pakistan formed, मतलब पार्टीशन हुआ था? रेडक्लिफ, नहीं सुने? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, हुआ? ठीक, ये बाकी आज हम लोग यहां तक ही रखते हैं। ठीक है, हम लोग आज का रिजल्ट तक आए हैं, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।